شیریں زباں، حسن اخلاق اور مسکراتی آنکھوں کا متلاشی کون نہیں ہوتا، اور یہی کچھ نادیدہ قوتیں بھی چاہتی ہیں، وہ بھی انہی باتوں کی گرویدہ ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عشق و محبت، چاہت اور خلوص اور دیدہ دلیری ہر مخلوق میں ہوتی ہے۔ میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، نیند کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ کسی نے اچانک سوتے میں میرے چہرے پر پانی پھینکا تھا۔ اچھی طرح ہوش میں آنے پر میں اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ پھر میں سمجھی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اپنے دوپٹے کو گیلا دیکھ کر میں اپنے خیال کی نفی کرنے لگی۔ بہت دیر تک دیکھنے اور غور کرنے پر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں بہت دیر بدحواس رہی۔ کمرے میں بھی اس وقت ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ سب گھر والے اپنی اپنی چارپائیوں پر پرسکون سو رہے تھے۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے منہ آسمان کی طرف کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون تھا جو مجھ پر پانی پھینک کر گیا۔ صبح تک میں اس بات کو بھول چکی تھی، کیونکہ یہ کوئی اتنی خاص بات بھی نہیں تھی۔ صبح کو گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل اور رونق تھی۔ آج میری کزن نیدا کی مہندی تھی اور سب گھر والے وہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ جانا تو میں بھی چاہتی تھی، مگر 2 دن پہلے ہی سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگا بیٹھی۔ خیر چوٹ زیادہ نہیں تھی، مگر معمولی بھی نہیں تھی۔ پاؤں کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی، تکلیف بہت زیادہ اور سوجن بھی۔ تھوڑی دیر چلتی تو تکلیف ہوتی تھی اور پاؤں سوج جاتا تھا، اس لیے نیدا سے فون پر ہی معذرت کر لی تھی۔ امی بھی بار بار مجھے سمجھا رہی تھی، بیٹا دروازہ اچھی طرح بند کر لینا۔ ویسے تو امی بھی شادی میں جانے سے منع کر رہی تھی، مگر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اکیلی رہ لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی آپ نے وہاں رکنا تھوڑی ہے، چاہے دیر سے صحیح، مگر گھر آئیں گی ضرور، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اور کچھ دیر بعد ہی سب گھر والے جانے کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ گھر والوں کے جانے کے 2 گھنٹے بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک انتہائی خوبصورت بچی کھڑی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ میں بہت ہو کر اسے تکے جا رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ پنک کلر کے فراک میں تھی۔ پنک کلر اس کے سرخ و سفید رنگ پر بہت کھل رہا تھا۔ بالوں کی 2 چوٹیاں باندھے وہ انتہائی معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 8 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ باجی میرا نام انیبا ہے، وہ بولی۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف سے، اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں سمجھی کہ وہ محلے میں نئی نئی آئی ہوگی۔ میں نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ میں اور میرا شوہر فیضان ملتان میں رہتے تھے۔ فیضان گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ایسے میں جب میری طبیعت خراب ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے اور مجھے میری امی کے گھر اسلام آباد چھوڑ گئے تھے۔ خود ان کی پوسٹنگ بارڈر پر ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ میرے شوہر ایئر فورس میں تھے۔ مجھے امی کے گھر رہتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے خوشخبری آنے تک اس جگہ رکنا تھا۔ اس عرصے میں فیضان 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ روزانہ فون کرتے تھے۔ میں گھر آ جاؤں گا، میں یکدم ہی خیالات سے چونکی۔ بیٹا تمہارے امی ابو پریشان ہوں گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں باجی کے گھر کھیلنے جا رہی ہوں، انیبا بولی۔ میں اس کی طرف پیار سے دیکھنے لگی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس کے آنے سے گھر میں جیسے اجالا ہو گیا۔ وہ اتنی ہی اچھی تھی۔ ہمارے گھر میں چونکہ کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد میں اس خوبصورت مہمان کی خاطر تواضع کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی اور مجھے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے انیبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی باجی، انیبا کا مطلب ہے جنت کا دروازہ۔
मैं उसके नाम के खूबसूरत मतलब में खो सी गई। जन्नत का दरवाज़ा। मैंने ज़ेरे लब कहा, जितना खूबसूरत नाम है इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका मतलब है। मैंने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। बाजी आपने बुरा तो नहीं माना? वो बोली। किस बात का? मैंने कहा, यही कि मैं जो इधर उधर फिर रही हूँ। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे प्यार कर लिया। उसकी परवरिश शायद बहुत ही अच्छे माहौल में हुई थी, इसलिए वो बहुत ज़िद के बाद कुछ खाने पर राज़ी हुई थी। फिर हम दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा। अच्छा अनीबा, ये बताओ तुम कितने बहन भाई हो? सिर्फ 3, मैं और मेरे 2 बड़े भाई। वो बोली। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दूं कि तुम यहाँ हो? मैं बोली। हरगिज़ नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में सबको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे उसके घर वालों की तरफ से फ़िक्र होने लगी कि वो अनीबा को ढूंढ रहे होंगे। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहती हो? पता नहीं। क्या तुम्हें अपना घर का मालूम नहीं? नहीं, याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो? मैं घबरा कर बोली। देखो ना, तुम इस तरह यहाँ रहोगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर जगह ढूंढेंगे। नहीं, वो इत्मीनान से बोली। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ, मगर मैं दोबारा फिर आऊँगी। वो बोली। हाँ हाँ, ज़रूर आना। उसी वक्त अम्मी घर में दाखिल हुई। वो भी अनीबा जैसी खूबसूरत बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अम्मी को अनीबा के घर आने की कहानी सुनाई तो अम्मी को बहुत हैरत हुई। ठीक है, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ आऊँगी, अम्मी बोली। नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी, वो बोली। चलो हम छोड़ आते हैं, मैंने कहा। नहीं ना, मुझे अकेला ही जाना है। हम चुप हो गए और थोड़ी देर बाद वो अकेली चली गई। फिर अम्मी बोली, माँ हम मुझे ये बच्ची बहुत पुरस्रार लग रही है। अरे अम्मी, इतनी प्यारी बच्ची पुरस्रार सी कहाँ से होगी? मैं तो इस पर आशिक हो गई हूँ। उस रात भी सोते हुए मेरे चेहरे पर किसी ने पानी फेंका। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर सब अपनी अपनी जगह सो रहे थे। मगर मेरा चेहरा और मेरे कपड़े बददस्तूर गीले थे। सुबह हुई तो मुझे याद न रहा। पूरा दिन गुजर गया। मेरी दोनों छोटी बहनें नीदा के घर जा चुकी थी और अब अम्मी भी बारात में जाने के लिए नीदा के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। माँ, अगर वो बच्ची आज भी आ जाए तो किसी भी तरह हो उसके घर ज़रूर चली जाना। हाँ, ये तो मैं सोच रही थी, मैं बोली। अम्मी के जाने के ठीक 1 घंटे बाद दरवाज़ा बजा। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला तो अनीबा अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी थी। बाजी, आज मैं फिर आ गई, वो बोली। अच्छा, तुम्हें मुझे अपना घर दिखाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी और तुमसे दोस्ती भी नहीं रखूंगी, मैंने कहा। तो अनीबा का चेहरा अचानक मुरझा गया और वो यकदम बोली, नहीं बाजी प्लीज़, बात यह है कि मेरा घर बहुत दूर है। कितनी दूर? मुझे अपने साथ ले चलो, मैंने कहा। तो अनीबा मेरी तरफ गौर से देखते हुए आराम से बोली, मैंने कहा ना कि आप मेरे घर नहीं जा सकती। अच्छा, फिर मैं तुमसे नहीं बोलती, मैंने कहा। वो घबरा गई और कहने लगी, अच्छा अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। मैं उसे अंदर ले आई। वो बहुत चुप चुप सी थी। बाजी, मैं आपसे एक बात कहूँ, लेकिन एक शर्त है। चलो बताओ क्या शर्त है, मैं बोली। तो उसने कहा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगी? अरे तुमसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, और वादा करो कि आपको डर भी नहीं लगेगा, वो बोली। डर किस बात का? बाजी, बात दरअसल ये है कि मैं इंसान नहीं हूँ, उसने कहा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम अनीबा? ठीक कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं, बल्कि मेरा ताल्लुक कौम जिन्नात से है। मैं जिन की बेटी हूँ। खुदा की पनाह, मैं काम कर रहेगी। वो उस वक्त बिल्कुल बड़ों की तरह बातें कर रही थी। मैंने अपनी अम्मी और बाकी घर वालों से तो सुना था कि आगे जाकर पहाड़ों के पीछे जिन रहते हैं और
उक्का दुक्का लोगों से सुना भी था जिन्होंने हुज जन्नात को देखा था, मगर मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि किसी दिन मेरा भी सामना किसी जिन्नी से हो जाएगा। अनीबा बेटा, अब तुम मुझे डरा रही हो, मैंने कांपती आवाज़ के साथ कहा। नहीं बाजी, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए आपके पास आई हूँ। कैसी हिफाजत? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उस वक्त तक मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन नहीं था। बाजी, हर रोज़ आपके ऊपर कोई पानी फेंकता है ना। मैं चीख कर उठ बैठी। अब यकीन आ गया था कि वो कौन थी। उसने जो बताया था वो तो मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता था। मैंने फिजान तक से उसका जिक्र नहीं किया था। अनीबा मेरा चेहरा देखकर बोली, आप तो मेरी बाजी हैं, आप तो डर रही हैं। बाजी, आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। मुझसे गुलशाम बहुत शरीर है। वो शरारत के तौर पर आकर आपके ऊपर पानी फेंकता था, लेकिन मैं उसे वहाँ से भगा देती थी। अनीबा, मैंने आंखें बंद करके उसे पुकारा, तुम जाओ यहाँ से। क्यों बाजी? मैं तो आपकी दोस्त बन गई हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ ना कि मेरा घर देखने की जिद ना करें। आपको मैंने बाजी कहा है, मैं आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ। वो मुझे बहुत देर तक यकीन दिलाती रही कि मैं उसे अपनी छोटी बहन समझूं। उस वक्त तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन मेरा दिल ही जानता था कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। बाजी, आप मुझसे डर रही हैं ना? उसने पूछा। नहीं नहीं, मैं मुश्किल से इतना ही कह पाई, और इसके बाद मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। फिजान और अम्मी वगैरह सब लोग मेरे पास मौजूद थे। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा। तो फिजान बोले, मैं 3 दिन की छुट्टियों पर आया हूँ। आकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और तुम बेहोश पड़ी थी। फिर अम्मी को फ़ोन किया तो ये सब लोग भी घबरा कर जल्दी से चले आए। अम्मी अम्मी, वो अनीबा। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ अनीबा को? अम्मी, फिजान वो इंसान नहीं, वो जिन है। क्या? ये सुनकर सब लोग उछल पड़े। लेकिन वो अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करने वाली है, मैंने कहा। वो तो है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर हमारे और उसके दरमियान बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक अलग मखलूक हैं, फिजान बोले। फिर सबके मशवरे पर अब्बू ने एक बहुत बड़े आमल से रुजू किया। कई घंटे बाद अब्बू के साथ वो आमल साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझसे सारी कहानी सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा बात यह है कि खुदा की बनाई हुई इस कायनात में न जाने कितनी मखलूक़ात हैं, और कमाल यह है कि सब एक दूसरे से अलग होने के बावजूद मुंसलिक हैं। और तुम जिस बच्ची का जिक्र कर रही हो वो वाकई एक जिन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा तुमको, बल्कि वो दोस्त है तुम्हारी। आमल साहब, क्या ऐसे वाक़यात होते हैं जिन और इंसानों में दोस्ती होती है? आमल साहब बोले, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, बल्कि हमारे दूर दराज के मदरसों में जिन्नों के बच्चों की खासी बड़ी तादाद दरस लेने के लिए भी आया करती है। मेरी माने तो अगर ये इससे खौफज़दा नहीं है तो चलने दें इस तरह, क्योंकि वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो एक तरह से उनकी हिफाजत कर रही है, अपने शरीर भाइयों से उनको बचा रही है। फिर फिजान बोले, आमल साहब ये बताएं कि हमें उससे क्या रवैया रखना होगा? बिल्कुल नॉर्मल, ये समझे कि वो एक इंसान का खूबसूरत बच्चा है। अगर आप उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती हैं तो फिर ऐसा अमल किया जा सकता है कि वो आपके पास ना आया करे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती, मैं जल्दी से बोली। उसे आने दें, वो बहुत प्यारी है, मैं रोज़ाना उसका इंतज़ार करती हूँ। लेकिन अनीबा ना आई। शायद वो नाराज़ हो गई थी, या फिर कोई और बात थी कि उसने मेरे पास आना छोड़ दिया था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक मुझे चौंका देती, लेकिन वो फिर कभी नहीं आई। फिर एक हैरत अंगेज़ बात हुई। मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई, और वो हैरत अंगेज़ तौर पर अनीबा की तरह थी। वैसे ही आंखें, सुनहरे बाल, गोरा रंग, जैसे अनीबा छोटी होकर आ गई हो। अम्मी ने भी अनीबा को देख रखा था, इसलिए वो भी इस मुन्नी को देखकर हैरतज़दा रह गई। फिर ये बात समझ में आ गई
कि मैं इस दौरान मुसलसल अनीबा के बारे में सोचती रही थी, इसलिए मेरी मुन्नी भी अनीबा जैसी थी। फिर मैंने ज़िद करके अपनी बेटी का नाम भी अनीबा रखा। इसके बाद मैं फिज़ान के साथ सियालकोट चली आई, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला था। इस वाक़े को 6 साल गुजर चुके हैं। हमारी अनीबा अब 6 साल की है और ये हूबहू वही अनीबा है कि जिसको एक बार देखते ही प्यार हो जाए।